प्रेजेंट फर्स्ट, है ना बेटा? मुझे थोड़ा पढ़ा लेने दो, फिर आप लोग प्रेजेंट करना, है ना? ओके, सो काइंडली join your hands. And today who will be the monitor? Tell me. Today monitor. बोलो भाई. Tanisha. Tanisha, you will be guiding me throughout the class. Okay, Tanisha, unmute yourself. You will be talking to me. Okay. Vivek join. Sairam Vivek. Okay. Join your hands. Sairam. So last time we learned about the importance of trees. It's tracking. Okay. Your one or mine one? Pranjal. Pranjal. Yes, sir. Yes, sir. Is my voice cracking? No, sir. No. Okay. Then you will be guiding beta, है ना? Leave Tanisha. Perhaps he may be having some problem network. ठीक है प्रांजल, आप मुझसे बात करते रहना. ओके बेटा. सो लेट मी प्रेजेंट माय Yes, sir. स्क्रीन. हाँ जी, मैं स्क्रीन प्रिंट करता हूँ अपना, है ना? सो एक्चुअली what I meant to say, let this one start here, and I'm showing you your textbook, है ना बेटा? बुक कहाँ गया? खोला था मैंने, क्या हो गया? नोटबुक ओपन. ओके, देन बेटा ऐसे कैसे हो गया? ओके, या हाँ प्रांजल, can you see the book बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so I wanted to say that is biodiversity, है ना बेटा? Biodiversity, we and around us there are variety of life forms, right? And the part of the earth on which or in which life exists, that is called biosphere, है ना बेटा? So note down, biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which supports life. ठीक है? अर्थ का जितना भी पार्ट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, चाहे वो लैंड में सपोर्ट करे, वाटर में सपोर्ट करे या एयर में सपोर्ट करे, दैट टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर. ओके? Yes, sir. Yes, sir. We all know the layers of जो हमारा लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेयर है. We all know that we all are made up of atoms and molecules, right? And all atoms and molecules do not give rise to the living organisms. Some pre-existing cells, from that life starts. So first of all, the smallest part of the life is cell, है ना? Cell, you all know, cell is the structural and functional unit of life. And when cells which are capable of performing the same task, they unite, they aggregate to form tissues. Tissues aggregate to form organs. For which purpose? Yes, For a particular region, for a particular work, right? And tissues form organs, and organs together form organ system, and organ system together form complete organism, which is called individual. Then many individuals live together, is called population. Many population join to form biome, and many biomes together form biosphere. This way the hierarchy of life is there, beta.
ठीक है बेटा. Now in this biosphere there is variety of life. Biological diversity or biodiversity इसको बोलते हैं. Biodiversity means biological diversity. That is refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. Note down यहाँ से. ठीक है. Variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment is called biodiversity. Okay, so today let us learn more about biodiversity. Okay, and for that let me go to class H, right? Ranjal, Yes, sir. can you see it? हाँ, let me play this, है ना? Oh, expired हो गया. अच्छा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा. Let me login बेटा. Let me login again. बोल के रखो तो एक्सपायर हो गया. एक मिनट बेटा, है ना, देना थोड़ा. एक मिनट फिर से लॉगिन कर लेंगे. क्लासेज ऑनलाइन है ना बेटा. मेन है, इफ वी अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी देन आवर पर्पस विल बी डन. Okay. Come on, dear. Class 8. Yeah, biodiversity. Biodiversity. है ना? Variations in biodiversity. है ना? Have you ever wondered Note down the how many questions. species of organisms exist in this living world? The strange thing is that we really don't know for sure, and we never know what most of these organisms are. Millions of species of plants, animals, सर and आवाज नहीं आ microorganisms रही. around us, their bodily structures, eating habits, genetic आवाज नहीं आ रही traits, है? and habitats. आ रही है सर. I'm getting the आवाज बेटा. चलो let me see. आ रही है सर. आ रही है ना? चलो ठीक है, मैं चालू करता हूँ फिर से. This variety of life forms that exist on Earth is termed as biodiversity or और biological biological diversity. diversity. Okay, the variety of life forms. So let's go on a wildlife safari to explore the variety of life forms. What बेटा? Ranjal, Yes, what is sir. meant by biodiversity? Yes, sir. Can you define biodiversity? Simple meaning is variety of life forms existing all around us is called biodiversity. Biodiversity. Okay? Biodiversity. Yeah. Now let us go ahead. Let's take a look at the plant world. From tiny mosses, green algae, to flowering plants, and huge conifers all exist in the plant world. The animal world includes aerial, aquatic, amphibian, and terrestrial life. With different eating habits, some are herbivores, some carnivores, while some are omnivores. Animals also differ based on the characteristics. A variety of characteristics are passed on from one generation to another, resulting in genetic diversity. Any questions so far? Ranjal?
Ranjal beta, any question? No, sir. No, good. Right? So see how different forms of life are existing on the earth, है ना? And this is the beauty, right? और हमें सबका सम्मान करना चाहिए, और अगर हम सबका सम्मान करेंगे तभी हमारा भी सम्मान होगा, हम भी जीवित रह सकते हैं, right? So let us go ahead. Look, a waterhole with flamingos. There must be lots of other birds too feeding on a variety of fishes in a pond. A wide variety exists within the same class of animals as well. Let's understand this with the fishes and birds around. All species of fishes are included under the class Pisces. Some species live in fresh water, while others live in seawater. Some are tiny, while others are giant-sized. Some fishes use their tail fin to change directions, while some use it as a defense weapon. Ops includes all species of birds. Each group of birds has its own distinct features. Apes, birds को apes बोलते हैं. While most birds fly, some are flightless, some are excellent runners, and some are swimmers. Each species of bird has a beak adapted to the type of food they eat, while their feet are adapted to the type of habitat that the bird lives in. Sharp, curved beaks help to tear the food, long and slender beaks to probe nectar, and scoops to collect water. Their eating habits also vary from nectar to fruits, seeds, and various small animals or even other birds. Predators have curved feet with sharp claws, murderers have long legs, while swimmers have webbed feet. Okay beta, see how variety of life exists, है ना? So whenever you get a chance Yes, sir. to see as many plants, as many animals, and for that you may get a chance to go to a zoo, है ना? आपको चांस कभी मिले जू जाने का, कई लोग गए भी होंगे आप में से, गए आप लोगों से कोई बेटा? Yes, sir. है ना बेटा? Yes, sir. हाँ, और मध्य प्रदेश, Yes, sir. our state, that is it has very rich biodiversity बेटा. कभी मध्य प्रदेश का ऐड देखो टीवी पे, ऐड आता है ना, तो उसमें बोलता है ये देखो मध्य प्रदेश का, we have so many wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, है ना? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल देखो, हम लोग एक्चुअली हार्ट में हैं. हमारा लोकेशन मैप में देखना, वेयर इज मध्य प्रदेश इन द मैप ऑफ इंडिया. जैसे हमारा हार्ट लोकेटेड है ना अपनी बॉडी में, ऐसे अपने को पूरा इंडिया मान लो, तो जहां हमारा हार्ट है एग्जैक्टली सेम पोजीशन हमारा मध्य प्रदेश का है ना? Yes. एंड रियली वी आर प्राउड, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट वी लिव इन सच a beautiful state which is full of biodiversity, right? So whenever you get a chance to go zoo, to go to a national park, देखो यहीं पर बगल में हमारा शिवपुरी ना माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, पहले हम क्लास 7th को वहीं ले आते थे दिखाने के लिए, और अभी 8th में अब क्या कर सकते हैं, इट्स आवर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19, है ना? वी यूज्ड टू गो टू भोपाल, वेयर वी यूज्ड टू गो टू नेशनल पार्क भोपाल में जो हमारा है वन विहार, नाम सुना है आपने रंजल? Yes, sir. वन Yes, विहार sir. नेशनल पार्क, इट्स नेशनल पार्क, और हम वहां पर जाते थे ना, तो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, है ना? आई यूजुअली यूज्ड टू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर नाउ certainly it is not possible. So whenever you get a chance to go to Bhopal, do visit One Vihar National Park and then try to find the biodiversity. The term देखो बेटा जो साइंस का हमारा, and make it sure to visit regional science center, right? And there you will find variety of science experiments spread inside the building and in the park also, and try to participate, do it, है ना? And then you should go to Indira Gandhi Anthropological Museum, right? एंथ्रोपोलॉजी के संबंध में सब कुछ उसमें आपको बहुत सारे मॉडल मिलेंगे, बहुत सारे एग्जिबिट्स मिलेंगे, देखिए उसको. एंड डोंट फॉरगेट टू आल्सो विजिट मेनी म्यूजियम्स, कई सारे संग्रहालय हैं,
है ना, उनको देखिए आप। तो बेटा हमारी जो पढ़ाई है ना सिर्फ बुक्स में नहीं है ना, ये तो पूरा हमारा आउटसाइड लाइफ है, ये हमारा सराउंडिंग है, आसपास के जो हमारे पीपल जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना, और जहाँ जहाँ हमारे बहुत कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्रॉम एवरीवेयर वी लर्न एंड वंस वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज, या देन वी आर अ गुड लर्नर, है ना, लर्निंग टू लर्न, ये हमारा लाइफ होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। Yes, sir. ओके बेटा, लेट अस सी सम मोर। Biodiversity also changes with change in environment. देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, as our environment changes, it is also changing our biodiversity, and you all know we are facing this climate change, and because of climate change many species have become extinct, means not none of them are there on the earth। जैसे पिंक हेडेड डक, गुलाबी सिर वाले बत्तख थी, कोई नहीं है, एक भी नहीं है। आपके देखिए डायनासोर कब के चले गए, एक भी नहीं है अभी, है ना बेटा। सर इसी तरह से पांडा भी खत्म हो रहे हैं। हाँ पांडा, तो इनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो अभी तो इक्का दुक्का बच रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू लूज देम आल्सो इन कमिंग ईयर्स, सो दे आर तो एंडेंजर्ड। मेनी हैव एक्सटिंक्ट, जो चले गए, अब है नहीं बेटा, कई सारे एंडेंजर्ड हैं, एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट Yes, चेंज many animals, many plants life, they are going to be extinct होने के कगार पर हैं। तो हमें इनको संभालना पड़ेगा, हमें इनको बचाना पड़ेगा, अदरवाइज आवर लाइफ विल बी आल्सो इन डेंजर। लेट अस सी बायोडाइवर्सिटी चेंजेस, है ना, विद चेंज इन द एनवायरनमेंट। Animals like yak and polar bears living in the cold climatic regions have thick fur which protects them from extreme cold. Here the plants are cone-shaped with thin, needle-shaped leaves which helps the snow slide off during snowfall. In the deserts, camels have long legs, thick eyelashes, closed nostrils to protect themselves from the heated ground. है ना बेटा, देख रहे हो ना, अभी right now the animals are living in the Yes, environment and they are having some adaptive features. So if the environment changes and if the adaptive features are not also changing and the adaptive features are of course enabled, then that will survive. But if environment changing faster and accordingly the change in the habit and what you can say, the shape and structure in the living organism doesn't change, certainly that animal, that plant will have to be extinct, है ना। तो देखिए एनिमल के बारे में we have learned about all this। Cactus, a desert plant, has spiny leaves with green and fleshy stem. This helps them to reduce water loss during transpiration. In the aquatic habitat, the streamlined body helps the fishes to swim freely. Aquatic plants have long, slender, and soft stems so that they easily bend in the direction of the flowing water. Similarly, animals and plants in other habitats too have adapted themselves to their environment. What do we call them? Adaptation, है ना बेटा। Let us go ahead. Importance of Biodiversity supports life on Earth. note down बेटा, importance of biodiversity. Biodiversity supports life on Earth. Remember, alone we cannot survive, है ना। Not only for our 3 basic needs, रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ इतना ही नहीं है। जो फूड हमें मिलता है, इस फूड के लिए Yes, sir. प्रॉपर फूड चेन है बेटा, ग्रीन प्लांट से लेकर के, है ना, क्या कहते हैं, ये प्रोड्यूसर्स टू ऑल, है ना, कंज्यूमर्स। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। Providing food, clean air, ये डायग्राम देखो, बहुत से डायग्राम है ना। कभी आर्ट के कोई ऐसा हो तो बना सकते हो ऐसा डायग्राम, है ना, याद कर सकते डायग्राम को, देखो, है ना। ये मदर अर्थ, यू नो, दिस इज द ओनली प्लैनेट सो नोन, है ना, ये पूरे यूनिवर्स में दिस इज आवर मदर अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। हाँ, हो सकता है, मानते हैं हमें, Yes, sir. कहीं और होगा, ऐसा कोई और सोलर सिस्टम होगा, किसी दूसरे गैलेक्सी में होगा, है ना, वी डू नॉट डिनाई,
ऐसे भी हमारे जो शास्त्र है ना बेटा, उसमें 7 लोक की कल्पना की गई है, 1 लोक नहीं 7 लोक है ना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने स्कूल में, क्या करते हैं, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, करते हैं ना, याद आ रहा है? Yes, sir. है ना बेटा। और हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर बिलीव्स इन वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, है ना। तो जो परिवार को कोई हार्म पहुंचाता है क्या, नहीं ना। लेकिन Yes, sir. कई ऐसे कंट्रीज हैं, कई ऐसे लोग हैं, and for the greediness, you know, nature has given us to fulfill our need but never to fulfill our greed. प्रकृति ने हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ दिया है, धरती माँ ने, प्रकृति माँ ने सब दिया है बेटा, लेकिन हमारी जरूरत पूरी करने के लिए सब कुछ है, फिर भी हम लालच के मारे, है ना, हम सोचते हैं अरे आज का खाना तो बन गया, कल कैसे बनाएंगे, चलो लकड़ी काट कर ला के भर देते हैं, एक कमरा भर दिया लकड़ी काट कर लाकर हरे भरे पेड़ों को। अरे भाई पेड़ों से थोड़ा इंतजार तो करो, वो सूखी लकड़ियां खुद दे देंगे आपको, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, लेट्स गो अहेड। And fertile soil. As living things are interconnected ये देखिए, and interdependent, है ना, डू यू रिकॉल what do we call this, food chain and food web, Angel? Yes, sir. है ना, biodiversity is very essential for the maintenance of food chain and food web. Once the chain is broken, it will be disaster. food chains and food webs are a significant part of biodiversity. Extinction of the prey in the food chain directly endangers the existence. देखिए, किसी का भी एक्सटेंशन, मान लो एक प्रे जो दूसरे को खाता है ना, ये फूड चेन क्या है, eating one organisms, it is eaten by the other one eaten by the other. In this way, the biological energy, the flow of energy takes place. This is called food chain, है ना बेटा। इसमें एक भी एक्सटेंट हो जाए, एक भी एक्सटेंट हो जाए तो दैट विल लीड टू द डिजास्टर ऑफ द कंप्लीट इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाए। मान लो ये चूहा ही चला जाए तो क्या होगा, सांप को खाना नहीं मिलेगा, है ना। ऑफ कोर्स अभी तो हमारे पास, इसके पास और भी है, चूहा नहीं मिलेगा किसी और को खाएगा, है ना। लेकिन मान के चलो अभी तो इसका लाइफ खत्म हो जाएगा, ये खत्म हुआ तो हॉक चला जाएगा, और अगर चूहा खत्म हो गया तो इसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो खाने वाला है नहीं ग्रास हॉपर को, फिर ये प्लांट को सफाया करना शुरू कर देगा, फिर इनकी भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, इनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये भी मर जाएंगे। The plants, they will also be finished. So ultimately, the whole ecosystem is gone if one of the chain is broken. Of the dependent Yes. predator. Similarly, with the extinction of predators, the prey population explodes. ये देखो इसका बढ़ जाएगा पूरा, अगर वो चला जाए तो, है ना। Okay, let us go ahead. There are two methods to conserve biodiversity. Now note down, and बेटा note down, ये पूरा चैप्टर हमारा कंजर्वेशन के ऊपर है, and conservation of plants and animals means biodiversity. तो इस चैप्टर का हम नया नाम रख सकते हैं कुछ, रंजन? Can we Yes, call sir, रख सकते हैं। new name conservation of Biodiversity. बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो आज से नहीं नाम कॉल करेंगे, जब भी बात करेंगे तो बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देयर आर टू मेथड्स। Natural homes such as national parks, wildlife sanctuaries, botanical gardens, and zoos. Also, down. artificial homes such as seed banks, gene banks, and reserved biodiversity zones. Note down methods to conserve biodiversity, बस for extra knowledge बेटा, not for the examination purpose. Of course, national park, wildlife sanctuary, botanical garden, zoos, ये सब हम पढ़ाएंगे अभी, है ना। reserved biodiversity zones. So अगर हम इन सब का केयर करते हैं then certainly we can take care of the whole biodiversity. Shall I go ahead? लिख लिया आपने? Yes, sir. क्लिक कर लो आप लोग, है ना, आप लोग माहिर हो, you all are
आई मीन मच मच अहेड इन टेक्नोलॉजी, है ना? Yes, sir. हाँ बेटा, आप लोग ही सबसे आगे हो, 21st सेंचुरी वाले आप हो। हम लोग तो आपके पीछे पीछे अब चलते हैं, है ना? तो कभी काफी आप हमारी हेल्प कर सकते हो टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, लेट अस गो अहेड। चलो, Yes, sir. सबके बारे Yes, में sir. थोड़ा जानकारी रखना बेटा। जीन बैंक क्या होता है, व्हाट आर जीन्स। अब जीन बैंक हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा अभी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू ट्राई टू Yes, sir. लर्न अबाउट ईच टर्म। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एंड whenever we get time we can discuss small amount. Among the national forms, national parks are solely for conservation purposes. Human activities or settlements are strictly prohibited. Wildlife sanctuaries are open for tourism, allowing limited human activities such as firewood collection and grazing. Human settlement is again prohibited here. याद रखिए नारा बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिशन है, लिमिटेड। आप जा सकते हैं, ड्राई लकड़ियों को कलेक्ट कर सकते हो, इसके लिए है परमिशन, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट इज प्रोहिबिटेड। इसके अंदर हम छोटे छोटे घर बना के रहना शुरू कर दें, नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। Yes. Botanical gardens are set up to conserve rare and threatened plants. प्लांट्स के लिए Zoos बोटेनिकल try to गार्डन। breed animals and reintroduce their offsprings in the wild. They help to connect people with the wildlife and promote the importance of biodiversity conservation. Among the artificial homes, seed banks help to store a large variety of seeds, especially those of rare species, to protect biodiversity. Gene banks store and preserve the genetic materials of plants and animals. Preserved biodiversity zones are created to protect the biodiversity of a region. Scientists and researchers work together to experiment and share data with the aim to protect and preserve the environment. Saving biodiversity is essential for the existence. इज द पंच लाइन, नोट डाउन। देख रहे हो, द चाइल्ड हैज एम्ब्रेस्ड द ट्री, रियली वी ऑल शुड लव द ट्रीज बेटा, है ना? एक ट्री को देखना, एक Yes. पेड़ के पास जाना, उसका एक बार हटाना, आपको सो मनी और चींटियां कई सारी मिलेंगी। हैंडलैंड लेके जाओ, देखो आपको वैरायटी ऑफ लाइफ इट सपोर्ट्स। एक पेड़ खुद अकेला जिंदा नहीं रहता, अपने साथ सैकड़ों दूसरे जीवों को भी लाइफ देता है, सरवाइव करता है अपने आसपास, अपने खुद के अंदर, Yes. है ना? So saving biodiversity is essential for the existence of life on earth. If we want that life should exist on the earth, which is not at all seen nowadays on any other planet so far. This life is very very beautiful, so beautiful life, है ना? And certainly we all would not like to lose it. Supply alone. Let's summarize what we've known so far. What is biodiversity, है ना? And all this. Okay, so with this let me come to the PPT. Okay, so far we have discussed about deforestation, Pranjal, है ना बेटा? Which means Yes, sir. the clearing of forest and using the land for other purposes is called deforestation, है ना? And there are three main causes of deforestation. तीन मुख्य कारण हैं जो हम पेड़ों को काट रहे हैं। Procuring means getting land for cultivation, है ना? भूख मिटानी है तो अनाज उगाना है, अनाज उगाना है तो खेत चाहिए, खेत चाहिए तो जंगलों का सफाया कर दो। Building houses and factories, using wood as fuel or making furniture etc, है ना? And there are two natural causes also. नेचर खुद भी, है ना, कई सारे पेड़ पौधों खत्म करती है, दैट इज फॉरेस्ट फायर, जो खुद से लगती है Yes, जंगलों की sir. आग, एंड ड्रॉट। कभी कभी बेटा डजंट रेन फॉर वेरी वेरी लॉन्गर पीरियड, लगातार कई सालों तक बारिश नहीं होती है, तो कई सारे जंगल इसमें खत्म हो जाते हैं, है ना? तो सूखा पड़ जाता है। हाँ, and what are the consequences?
परिणाम क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का? Consequences are increase in the temperature and pollution level on the earth, increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere, which leads to global warming, lowering of groundwater level. देखिए अभी गर्मी आने दो, क्या हाल होगा, है ना? अभी तो गर्मी गया, अभी आने वाले गर्मियों में देखिएगा कितनी लोगों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है पानी लाने के लिए, है ना? Yes, गंदे sir. गंदे गंदे गंदा पानी तक लेके आते हैं बेचारे, किस तरह से पीते हैं। और आपके घर के जो पानी होता है, जो सोर्स आपका है, वो बोरिंग जो आपकी है वो काफी लोगों सूख जाता है, कुएं सूख जाते हैं, हैंडपंप सूख जाता है ना? काफी अंदर तक बोरिंग करनी पड़ती है हमें। Disturbs the balance in nature, decrease in rainfall leading to drought, soil erosion takes place, and because of that soil fertility is gone, and ultimately the soil becomes desertification, and decrease in the water holding capacity of soil leading to floods. Okay, so we have discussed it. Drought, है ना? We have desertification. Desertification, if you want to write down, you can note down. Removal of top layer of soil exposes the hard and rocky lower layers, which have very less humus and air. As they are less fertile, soil becomes like desert, which is called desertification. Now, what is the answer to all this problem? How to conserve trees and of course other life forms? It is conservation of forest and wildlife. हमें जंगलों को बचाना पड़ेगा, हमें जंगली जीवों को बचाना पड़ेगा। Forest and wildlife can be conserved by setting up areas like biosphere reserves, wildlife sanctuaries, national parks. और इनके डिफाइन है, ये डिफाइन मैंने आपके बुक से लिया है, मैं आपको बुक में दिखा दूं डिफाइन कहाँ पर है ना? आप भी नोट डाउन कर लीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, है ना? यहाँ देखिए, ये है 3 डेफिनेशंस, ये जो है ना, क्या कह सकते हो, कौन सा कलर है ये? लिटिल बिट seems like ग्रे कलर का, जो बॉक्स है दिख रहा है मेरा, पेज नंबर 78। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, Yes, sir. एरियाज वेयर एनिमल्स आर, और बड़ा कर दूं क्या, अब दिख रहा है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. National park, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. And biosphere reserve, large areas of protected land for conservation of wildlife, plants and animal resources. And sorry, also traditional life of the tribals. You know, many tribal people live in those areas. तो अगर हम उनको भी साथ में बचा कर रखेंगे, तभी हमारे जंगल, तभी हमारे जंगली जानवर बच्चे रह सकते हैं, क्योंकि उनका लाइफ, वो उनके बारे में जानते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड, तो उनके जीवन को बचाना हमारा काम है। एंड वी ऑल आर वेरी लकी, वी आर लिविंग इन द एरिया, दिस इज द गुना डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यू नो। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब जहाँ पर जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ पर हमारे लोग शहरिया जनजाति ज्यादा लोग रहते हैं, जानते हो बेटा आप लोग? शहरिया लोग जानते हो? रंजल, No, sir. नो, अच्छा अपने पापा से बात करना, मम्मी से बात करना। शहरिया दे आर अ ट्राइबल पीपल है बेटा, और आपके राघवगढ़ में तो कई लोग आते हैं, देखना आएंगे ना तो काफी कुछ इधर पहने रहेंगे, उनका ड्रेस ही अलग, ड्रेसअप अलग रहेगा, और वो आते हैं सब बंजारा टाइप। हाँ, बंजारे से दिखते हैं जो है। इनमें हमारे यहाँ जो आपका गुना जिला है ना, यहाँ शहरिया जनजाति के लोग ज्यादा है। खैर, तो तीनों डिफाइन याद कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक है? नाउ इनमें से वन बाय वन हमें सबको पढ़ना है। बायोस्फीयर रिजर्व, these are large areas of protected land for conservation of biodiversity, जिसका मैंने बता दिया बेटा। Variety of living organisms, their interrelationship as well as their relationship with the surrounding is called biodiversity. In biodiversity we include plants, animals and also microorganisms, है ना बेटा? Microorganisms are also a part of our biodiversity. उनके बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इवन हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन से लेकर इन आर मेनी बॉडी पार्ट्स, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे हेल्प
to produce certain enzymes which are helpful in our digestion, है ना। अगर उनको खत्म कर दें तो हमारा भी लाइफ पॉसिबल नहीं है अच्छे से। लेकिन हाँ, कुछ हानिकारक है, पर्टिकुलर वायरस है, वायरसेस से हमें सचेत रहने की जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द एरिया। देखो ये भी शॉर्ट डिफाइन ये है बेटा। नाउ इन दिस बुक यू विल फाइंड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एग्जांपल लेकर समझाया, मैंने पहले बताया था, ये अंडरलाइन कर लो। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है, क्या नाम उसका है, सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर है, दे आर बोरी एंड पचमढ़ी। पचमढ़ी खुद नाम है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नाउ सम टर्म्स है बेटा जो हमें आना चाहिए, समझ में आएगा। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फ्लोरा, याद रखना। एंड फाउना Yes, sir. एनिमल्स को बोलते हैं। फाउना आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जैसे द फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी, पचमढ़ी में जाओगे तो मिलेगा साल, पीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, ये डायग्राम बुक का है आपका। एंड द फौना ऑफ पचमढ़ी, वाइल्ड डॉग, चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, ब्लू बुल, बार्किंग डियर etc. Then we use a term called endemic species, है ना। Species, every species has its scientific name बेटा। जैसे what are we are human beings, so what is the scientific name of human being, Homo sapiens. Homo sapiens, very good. Similarly, what is the scientific name of mango, Mangifera indica. मैंजीफेरा इंडिका। इसको हम बोलते हैं बेटा बोटेनिकल नेम, प्लांट है तो, और अगर एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम बोलते हैं, और टुगेदर हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। सिमिलरली व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड, Peacock. peacock. So try to collect the scientific name of peacock. Okay, what is our national flower, Lotus. lotus. So what is the Lotus. scientific name of lotus, नीलम्बो नुसिफेरा, है ना। ऐसे आप सबके जहां पर आप स्टडी टेबल है ना, अपने अपने स्टडी टेबल के सामने 10 प्लांट के नेम विथ साइंटिफिक नेम एंड 10 एनिमल्स का नाम और साइंटिफिक नेम उसके, सब लोग अपने अपने टेबल के सामने लगाइए और उसको पढ़िएगा Sir. हाँ हाँ, हर 10 दिन के बाद, जैसे मेरी बात सुनो भाई, आफ्टर एवरी 10 days कलेक्ट अदर 10 नेम्स एंड पेस्ट देम। सो एक दिन में 2 नाम मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे आप ट्राई टू कलेक्ट एंड मेमोराइज। यस बेटा बोलो। सर हो सकता है। Sir, Pavocristatus. हाँ हाँ, पैवोक्रिस्टेटस, दैट इज द नेम ऑफ पीकॉक, है ना। गुड, चलिए अब इसमें से कई स्पीसीज बेटा दे एंडेमिक उनको बोलते हैं। एंडेमिक बोलते हैं पर्टिकुलरली उस एरिया में पाए जाते हैं। जैसे पता है अपने जो एरिया है ये गेल विजयपुर के आसपास का एरिया या रावगढ़ का एरिया, इसका एंडेमिक स्पीसीज एक है कोबरा, ये सांप पाए जाते हैं यहाँ पर, और आपको पता ही होगा सर NFL। हाँ NFL वगैरह में भी काफी निकलते रहते हैं, लोग मार डालते हैं। मारना सोल्यूशन नहीं है बेटा, इनको बचाना चाहिए हमें, खत्म करना सोल्यूशन नहीं है ना। बचने के रास्ते निकालिए, आपको बचना है ना। तो ये डिफाइन लिख लो, एंडेमिक स्पीसीज, दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, खास करके उस एरिया में, वो एरिया के लिए है ना, वहां पर उनके लिए रहने के लिए हैबिटेट और जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन है, इट इज वेरी 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 सपोर्टिंग, है ना। जैसे अगर हम बात करें पचमढ़ी का, तो साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी एंड एंडेमिक फाउना बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, दीज आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया, ठीक है। और अपने अपने एरिया का जो एंडेमिक स्पीसीज है उसका हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और अपने पता भी करना चाहिए हमें, ठीक है।
आप याद रखना, एंडेमिक है। Yes, sir. आप इसको एक्सटिंक्शन से या एंडेंजर्ड से कम, मतलब ठीक समझना, उसका उल्टा मत समझ लेना। एंडेंजर्ड नहीं, एंडेमिक Yes, है। sir. एंडेमिक का मतलब एक्सक्लूसिवली फाउंड इन दैट एरिया। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, these are areas where animals are protected from any disturbance to them or their habitat. The killing or capturing of animals are totally strictly prohibited. फिर भी कई लोग चोरी छुपे घुस जाते हैं बेटा, एंड दे इवन किल एनिमल्स, है ना, इनको पोचिंग बोलते हैं, पोचर्स घुस के मारते हैं, एंड दे आल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट्स आल्सो, है ना। कई सारे तो आपने नाम सुना होगा इसका, वीरप्पन का नाम सुना आपने, मारा गया वो प्रख्यात दस्यु था, कर्नाटका के जंगलों में रहता था, चंदन की लकड़ियों का तस्करी करता था ये, और हाथी दांत की भी तस्करी करता था। ये वजह स्मगलर, बिग स्मगलर, है ना, नाम सुना होगा आपने। Yes, तो sir. बेटा हाथी कितने अच्छे देखने में लगते हैं, उनके जो बड़े बड़े टस्क होते हैं, दो दांत होते बड़े बड़े, उनसे कई सारे मेडिसिन बनते हैं, मानते हैं दवाइयां बनती है। Yes, sir. इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जानबूझ से हाथियों को मार दो, भाई मरने के बाद तो लेके जाएगा ही तुम्हें, वो कहाँ लेके जाएगा खुद, फिर ले लो ना। नेशनल पार्क, these are the areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, पहला था अपने इंडिया का। अब इसमें देखो टाइगर्स, दे उनकी नंबर काफी घट गई थी बेटा। एक समय था कि द टाइगर वेयर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन थैंक्स गोज टू प्रोजेक्ट टाइगर, और उस समय टीवी में ऐड आता था, हर स्टार सचिन तेंदुलकर, हमने एक टाइगर को गोद लिया, और इस तरह से। बट नाउ वी आर लकी दैट वी आर हैविंग अ गुड नंबर ऑफ टाइगर्स, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश नंबर 1 हमारा है टाइगर में। जैसे आपने पन्ना, है ना, पन्ना नेशनल ये क्या है, टाइगर, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है बेटा पन्ना, है ना। Yes, sir. Now there is a red data book that have information, central information about the extinct endangered species, है ना, जो जो endangered हैं उनके लिए, यानी जो खत्म होने वाले हैं उनके लिए एक IUCN हमको रिकॉर्ड करता है, इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, एंडेंजर्ड एनिमल्स। चलो थोड़े से इसको बाद में बात करेंगे हम, है ना, और थोड़े से बुक के बारे में बात करेंगे, तो मिला जुलाकर हमारे चैप्टर पूरा होगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, डू यू नो, एनीवन कैन टेल मी what is so special about Pachmari Biosphere Reserve? पचमढ़ी के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है? नहीं, अंडरलाइन कर लो बेटा, लिख लो, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर, हेयर मीन्स Pachmari Biosphere Reserve are similar to those of the upper Himalayan peaks and also to those belonging to the lower western Ghats. ऐसा कहीं नहीं होता, दो जगह की बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सो दिस इज द यूनिकनेस, यूनिक बायोडाइवर्सिटी है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। ओके माय डियर, so here I am going to present my, stop presenting, right, time is also over. Anybody joined later on after Rohit, Vivek and then Girdhar joined, है ना। तो देखो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, किसी का नाम छूट जाए मुझे बताना बेटा, है ना। बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन करते हैं यार, मुझे नहीं आता है। निकुंज, राधिका, खुशी, पार्थ, आदर्श, मोनिका, अक्षत, अक्षिता, रंजल, पूजा, नंदिनी, आद्याशा, तनिषा, रेहान, रुद्राक्ष, श्रेयांश, देवांग, उदित, प्रिंस,
रोहित, विवेक एंड गिरधर। किसी का नाम छूटा? बोलो। नहीं ना? प्रांजल? No, sir. Okay, beta. So let us chant Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram, है ना? Before Sairam, sir. leave, है ना? Next class we will have